Hello students, a very good morning to all of you. We have already started the chapter digestion and absorption, and we have completed the process digestion, different salivary glands, what are the different juices and what are the different hormones secreted by the different parts and what is their role in digestion. And at the end we have already studied about the physiology of the digestion, that how the digestion occur in the proteins, carbohydrates, fats, etc. Okay, so today I will take up with the absorption of nutrient. That is the last part of this chapter, digestion. What is the absorption? It is the process by which the nutrient pass from the alimentary canal into the blood and the lymph. That is called as the absorption. यानी कि ये वो प्रोसेस है जिससे जो फूड है वो ब्लड से एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में पास होता है. दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन. क्या एब्जॉर्ब होगा? जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड दे ब्रेक डाउन इनटू द मोनोसेकेराइड, and fat break down into glycerols and the fatty acids we have already done, and the protein they break down into the amino acids. Okay, similarly so many other products like the vitamins, minerals, water, salts, drugs are also there which are to be absorbed from the alimentary canal. देखो, अगर हमने खाना खाया उसके बाद वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ आवर ब्लड, and from the blood it passed to the various body parts and where it is used to be the part of the protoplasm. यानी कि जो बॉडी के अंदर हमने खाना हमारे गया था वो ब्लड में जाएगा और ब्लड से हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में, जहाँ पे वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा डिफरेंट पार्ट्स को, और उसके साथ साथ वहाँ पे मेटाबॉलिज्म, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बनेगा. यानी कि अमीनो एसिड ने अगर प्रोटीन्स बनाने हैं तो प्रोटीन बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा, और फैट है वो सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ टिश्यू, सबक्यूटेनियस लेयर में जाकर स्टोर हो जाएगा. इज इट क्लियर? अब बात, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, वो एक अलग स्टेप है. फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब न्यूट्रिएंट एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ जा रहे हैं, ब्लड के अंदर जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. 90% जो एब्जॉर्प्शन है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती है. जो 10% एब्जॉर्प्शन है वो होती है स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स which break down into the amino acids, fat, glycerol, everything, these all the things they get absorbed in the small intestine. Some salts, drugs like aspirin, water, they are absorbed in the stomach. Similarly, some amount of the water and the products of the vitamins that are produced by the E. coli in the large intestine, they are absorbed in the large intestine. However, the main absorption occur in the small intestine. Is it clear? तो absorption क्या है, और mainly हमारी body में absorption जो है वो small intestine के अंदर होती है, जबकि उसका कुछ part जो है food का that is absorbed in the large intestine and stomach. Okay? Yes beta, now I will tell you that how the different things that get absorbed into our body. When we talk about the absorption mechanism, it can be the diffusion or it can be osmosis, facilitated transport or osmosis, and all these processes we have discussed in the transport chapter in detail. Okay, now I will tell that how the different units of the food like the monosaccharides means the carbohydrate, proteins that disintegrate into the amino acid and how these are absorbed. These are the parts of the alimentary canal, and it shows, this diagram is showing that which particular component is absorbed in which part. Okay, one by one I will explain again. First is the absorption of the monosaccharide. When we talk about the monosaccharide they are absorbed by the facilitated transport mainly, and the another pathway that they follow, that is the active transport by which the monosaccharide units they are absorbed into the blood. समझ आया आपको? यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स हैं,
डाइसैकेराइड हैं वो पहले मोनोसैकेराइड में ब्रेक होते हैं डाइजेशन से, एंड देन दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड या इनटू द ब्लड बाय द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट सम अमाउंट इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक. So here the small amount of monosaccharide is also absorbed. Okay. When we talk about the absorption of the amino acid, these are also absorbed in the small intestine, mainly amino acid by the facilitated transport or by the active transport. Okay. And they are mainly in the duodenum, jejunum region. In this region means that is in the small intestine. Then absorption of fat, that is very important because जो फैट हैं इनका एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द सिंपल डिफ्यूजन. देखो ये थे प्रोटीन्स, they digested product is the amino acid. Then these amino acid they enter into the small intestine, these are absorbed, and how they will convert means they convert into the amino acid we know by the digestion, and then these amino acids that they will absorbed by the facilitated transport or by the active transport into the blood capillary. Okay. Then these are the carbohydrate, these are also absorbed, they break down into the monosaccharide unit, these are absorbed in the small intestine region mainly and small amount in the stomach region also. Okay. So ये यहाँ देखो आप प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में, एंड हियर दे कन्वर्ट इनटू मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड भी एब्जॉर्ब हो गई. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि फैट क्या है, दैट इज डिफ्यूज्ड बाय द that is absorbed by the simple diffusion. Mechanism of fat absorption is something different. First of all, the fat molecule they are emulsified with the help of bile salt. Okay, bile salt you remember that are the secreted bile secreted by the liver. Okay, then these bile salt, these oil droplets or fats that will join with these bile salt to get emulsified. Emulsification break down into small droplets. Okay, and they form the small spherical water soluble droplets or molecules that are called as micelles. Very very important कि ये fat जो था that will join with the bile salt get emulsified to form the small spherical water molecule that are called micelle. Now these micelles that will be absorbed into the small intestine, and here it get resynthesized in the endoplasmic reticulum into the small fat molecule, very small fine fat droplets that are called chylomicrons. समझ आई आपको ये बात? प्रोटीन में सीधा अमीनो एसिड थे, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो गए, पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में ब्रेक डाउन हुए एब्जॉर्ब हो गए, बट फैट में ऐसा नहीं है. फैट फर्स्ट इमल्सीफाई होगा, इमल्सीफाई होने के बाद स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बनाएगा जिसको हमने माइसेल्स कहा. फिर ये माइसेल स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे एंड यहाँ पे वो रीसिंथेसाइज्ड होंगे इनटू स्मॉल fat droplets that are called very small fat molecules that are called chylomicron, and then these chylomicrons are absorbed here in the lacteals. What are the lacteals? These are the lymph capillaries of the small intestine. This is very very important. Sometimes सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट पे ही क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट अकर. ओके, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में कैसे होगा? सबसे पहला पॉइंट क्या है? इमल्सिफिकेशन. सेकेंड पॉइंट है काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन, माइसेल की फॉर्मेशन. थर्ड पॉइंट है काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन एंड फोर्थ है एब्जॉर्प्शन इनटू द लिम्फ कैपिलरीज. ओके, तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं हमारे फूड के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड नेक्स्ट इज द फैट, किस तरीके से ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो मेन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है that occur in the small intestine, but some amount is also absorbed in the stomach and in the large intestine, and water absorption that occurs simply by the osmosis. Okay, then there is the absorption of some salt that here you can see that it occur by the transport. Here you can see the salts, these are reabsorbed, these are absorbed here,
and here the vitamin, then absorption of the vitamin, the fat soluble vitamins, here you can see these are absorbed by the same method, and otherwise the vitamins they are absorbed in the large intestine also, and in the small intestine also. Okay, so these are the absorption method, that how the absorption occurs of the different nutrient. And one more thing is there कि water soluble vitamins जो हैं they are absorbed by simple diffusion and एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार यही क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल कहाँ होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल मेनली अकर इन द स्टमक रीजन. ओके, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है. तो समझ आया आपको कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट किस किस पार्ट में किस किस मेथड से होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज द एसिमिलेशन, यानी कि जब ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद it pass from the alimentary canal into the blood, that is absorption. अब blood में जाने के बाद what is its next phase, क्या होगा इनका? Obviously now it become the part of the protoplasm. Okay, and that phenomena that is called as the assimilation. The phenomena this is called as the assimilation when it become the part of protoplasm. Yes beta, now the next important thing is the assimilation, that when the absorbed part that blood take with itself and transport to the different body parts and it become the part of the different components and it provide energy and it become the part of protoplasm itself. Okay, that is called assimilation. अब सबसे पहला आता है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे अमीनो एसिड में. ठीक है बेटा, अब क्या है दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, सो वट एवर द अमीनो एसिड्स दे आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द body protein they are used, and the other amino acid which are extra they are deaminated and in the liver we have already studied, and amino group is removed and that convert to the formation of the led to the formation of urea, and urea is removed by the kidney, it is filtered by the kidney and that is stored in the form of the glucose or in the form of fat. यानी कि जो अमीनो एसिड है एक्सेस में अमीनो एसिड ऐसा स्टोर नहीं हो सकता हमारी बॉडी में, तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में या फिर फैट्स में. ठीक है, और इसके लिए अमीनो ग्रुप रिमूव होता है पहले. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीएमिनेशन. फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में चाहिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो यूज़ हो जाते हैं. जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है दैट कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन, एंड व्हेन एवर द बॉडी नीड्स दैट एनर्जी इट कैन कन्वर्ट अगेन टू प्रोवाइड द एनर्जी इनटू द सिंपलर फॉर्म. ओके, and if excess of carbohydrates are consumed then they also get converted into the fats. Okay, then fat itself that get deposited in the subcutaneous tissue and it also perform a very important function to regulate the body temperature itself. Okay, and it act as a cushion around the soft organs of our body. नेक्स्ट है जब एसिमिलेशन हो गई, नाउ व्हाट अबाउट द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो अभी भी हमारी बॉडी में है, जो ज़रूरी था हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, हमारी बॉडी के सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन गया. नाउ व्हाट अबाउट द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज द इजेशन एंड द रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर from out from the body, that is called as the egestion. The fecal matter mainly consists of the waste material, undigested material which is not required in our body. Okay, and next is the balanced diet. What is the balanced diet? मीन्स जिसके अंदर देखो सभी कंपोनेंट हो. आपको थर्ड क्लास से बताया जाता है कि बैलेंस डाइट क्या है. बैलेंस डाइट इज दैट विच हैज़ ऑल द कंपोनेंट न्यूट्रिएंट इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन दैट वेरी फ्रॉम द एज ग्रुप विद द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि ये वेरी करेगा. अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, रफेज, मिनरल, ये सब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो, दैट इज़ कॉल्ड एज द बैलेंस डाइट. अगर प्रॉपरली बैलेंस डाइट किसी को नहीं मिलती है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी के अंदर हमें क्या दिखाई देंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स. ओके, एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ना हो. अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो आप देखते हो कि उनके अंदर जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स विजिबल होते हैं. तो आपने क्या करना है, सभी विटामिन जो आपको लोअर क्लासेस में बताया जाता है, विटामिन ए, बी, सी, डी,
के, ये सब विटामिन जो हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन, इन सब विटामिन की आपने क्या करनी है, एक टैबुलर फॉर्म में लर्न करना है कि कौन सा विटामिन का क्या सोर्स है और उसका क्या डेफिशिएंसी सिम्टम है, यानी कि वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है ना, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं जैसे लेमन है, तो इससे आंवला है ना, इससे हमें विटामिन सी मिलेगा। और अगर नहीं होगा तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी, है ना। तो लाइक वाइज आपको सभी विटामिन ए जैसे है दैट डेफिशिएंसी दैट कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ऐसे ही पेलेग्रा आप पढ़ते हो, तो बहुत सारी डिजीजेज हैं और बहुत सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो आपको लोअर क्लासेस से कराए जाते हैं। तो आपने विटामिन डेफिशिएंसी का एक टेबल आपकी किताब में दिया है, उसको आपने सिंपल फॉर्म में लर्न करना है। इसी तरीके से मिनरल्स के डिफरेंट मिनरल हैं, आयरन है या कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जैसे ये बोन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी से कौन सा डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर होगा और उस पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट का क्या रोल है, तो ये आपने डिटेल में इसको बनाना है, अपनी लैंग्वेज में आपने इसको फ्रेम करना है। फिर आता है हमारे पास डिजीज़ेज़, ये आपने जो भी आपकी एनसीईआरटी में हर चैप्टर की डिजीज़ेज़ दी हुई हैं वो आपने ज़रूर करनी है। कुछ डिजीज़ेज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM बोलते हैं। 2 इसमें है हमारे पास क्वाशियोरकर एंड मेरेस्मस, मेनली ड्यू टू दी प्रोटीन डेफिशिएंसी इट अकर्स। क्वाशियोरकर 1 to 5 ईयर के बच्चों में ऑब्जर्व किया जाता है, मेरेस्मस बिलो 1 ईयर 0 to 1 जो बच्चे हैं उनके अंदर ये ऑब्जर्व किया जाता है जब प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। आप देखते हो इसमें स्वेलिंग ओएडमा हो जाता है ना, और मेरेस्मस के अंदर रिब्स जो है प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं, बच्चा इतना वीक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेरेस्मस, दैट इज ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है बेटा। फिर है कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन है व्हेन द पर्सन मीन्स देयर इज ए डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन, मीन्स द पर्सन फेल टू रिलीज द फीकल मैटर, व्हाई, बिकॉज द फीकस इज retained in the large intestine for a longer period of time, then what will happen, the more water is absorbed from the fecal and it become too hard to release from the body। तो क्या ऑप्शंस हैं, हमें समय समय पे हमारी जो मेन डाइट के अंदर रफेज होना चाहिए जो इन सब वेस्ट मैटर को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हमें हेल्प करे, ठीक है। रफेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द कॉन्स्टिपेशन। डाइटरी फाइबर्स हमें लेनी चाहिए और वाटर इनटेक प्रॉपर रखना चाहिए। हाउएवर लेग्जेटिव्स आर आल्सो देयर विच आर यूज बट दैट आर हैबिट फॉर्मिंग, सो बेटर वे है कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, या फिर आप वाटर इनटेक है, डाइटरी फाइबर्स हैं, रफेज हैं, ये अपनी डाइट में कंज्यूम करें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, ओके। फिर है वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी एक समझ लो प्रॉब्लम है, क्यों, इसमें क्या है, जो एब्डोमिनल प्रेशर एकदम इतना इंक्रीज हो जाता है कि सारा जो भी स्टमक के अंदर है दैट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ, है ना, तो उससे क्या होगा दैट, और बहुत बार अगर वॉमिटिंग होती है दैट कैन लेड टू द डिहाइड्रेशन ऑल्सो, एंड इट्स सेंटर इज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोल कर रहा है जो वॉमिटिंग को। अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी तो HCl बाहर आ जाएगा जो हमारे स्टमक का है, स्टमक में है, तो इससे ब्लड में एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, तो दैट कैन बी एक्सेसिव वॉमिटिंग कैन बी डेंजरस ऑल्सो, ठीक है बेटा। एक फीलिंग ऑफ नॉजिया होती है कि बार बार वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद आता है डायरिया, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल रिलीज है दैट इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड डायरिया, यानी कि जो वट एवर द टाइम एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट पास आउट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन का टाइम ही नहीं मिल रहा, लगातार स्टूल जो है फीकल मैटर बॉडी से बाहर जा रहा है, नो एब्जॉर्प्शन अकर, तो उसके साथ पानी और जो भी कुछ हम लेंगे वो सारा बाहर चला जाएगा। डायरिया का क्या, इस डायरिया से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर एक्सेसिव डायरिया हो जाए। अब डायरिया किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, मे बी ड्यू टू सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हो सकता है कोई स्ट्रेस कंडीशन हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए जिससे डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, और मेडिसिन वी हैव टू टेक फॉर दिस डायरिया टू ट्रीट दिस, ओके। देन वी हैव द जॉन्डिस, मीन्स देर इज ए दैट येलोइंग ऑफ द स्क्लेरा, जो वाइट पोर्शन है वो क्या हो जाए, येलो कलर अपीयर हो जाए, स्किन येलो दिखने लग जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बिलीरुबिन। बिलीरुबिन आपको याद है जो एक्स पिगमेंट थे, बाइल पिगमेंट थे, लिवर्स के जो बाइल सिक्रीट होता है उसमें है। व्हेन द लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली देन दिस गेट एक्युमुलेट एंड अपीयर इन द स्किन, इन द आईज इवन, है ना, आपने जॉन्डिस सुना होगा।
तो कई बार बच्चों में भी आपने देखा है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नियोनेटल जॉन्डिस हो जाता है, यानी कि उसमें ये हल्का जो जॉन्डिस ऑब्जर्व किया गया है, लीवर पूरी तरह से मैच्योर नहीं। तो आपने देखा होगा उसको ब्लू लाइट में रखते हैं, राइट। तो वो ब्लू लाइट क्या करती है, वो जो बिलीरुबिन है उसको कन्वर्ट कर देती है ऐसी फॉर्म में जिसे बॉडी एक्सक्रीट कर सके, और धीरे धीरे फिर लीवर मैच्योर हो जाता है विद इन फ्यू डेज एंड चाइल्ड रिकवर्स। ओके, फिर आता है हमारे पास, कंप्लीट हो गया ये। तो ये थे हमारे पास फ्यू डिजीजेज। तो आपने इसका टैबुलर फॉर्म ज़रूर करने हैं, जो विटामिन डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी से रिलेटेड टेबल जो दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, दैट यू शुड मेक इन योर ओन लैंग्वेज, जो आपने लोअर क्लासेस में किया है सेम आपने करना है। इज इट क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, yes beta, now there are some important NCERT questions of the digestion and absorption. You must go through all these questions, and few more important questions I will tell you. First question, why villi are present in the intestine, not in the stomach? Villi, you know, these are the finger like projections present in the intestinal lining. And what is the main function of the villi? It increase the सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो आपको पता है स्टमक में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं है, 90% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो विलाई वहाँ प्रेजेंट है ताकि एब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली हो सके। ओके, फिर है हाउ डज पेप्सिनोजन चेंज इनटू इन इट्स एक्टिव फॉर्म। जितने भी एंजाइम्स हैं वो स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं ताकि बॉडी वॉल को, स्टमक लाइनिंग को वो डाइजेस्ट ना करें। तो HCl जब फूड प्रेजेंट है देन HCl इज रिलीज्ड एंड दैट कन्वर्ट द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम इनटू एक्टिव फॉर्म। Pepsinogen is converted into active pepsin form by the presence of HCl. Okay. What are the basic layer of wall of alimentary canal? Very important question. आपको histology of alimentary canal में मैंने बताया था कि 4 layers हैं हमारे पास। सबसे पहले visceral peritoneum, then there is muscularis, then there is submucosa and the internal one is the mucosa. Okay, तो जो muscularis है that is having the longitudinal and circular muscle. Okay, और इसके अंदर orbex plexus और mesenteric plexus भी present है, but आपने यहाँ सिर्फ layers का नाम बताना है, that is 4 layer, that is visceral peritoneum, muscular port या muscularis, submucosa and mucosa. How does bile help in the digestion of fat? बाइल के बिना फैट डाइजेस्ट नहीं हो सकते क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम है वो तब तक फैट पे काम नहीं कर सकता जब तक फैट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूट जाता। तो बाइल क्या करता है, फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफाइड फैट, दैट इज इमल्सिफिकेशन। तो बाइल क्या करता है, इमल्सीफाई करता है पहले फैट्स को ताकि लाइपेज एंजाइम जो है उस पर वर्क कर सके और फैट को ब्रेक डाउन कर सके स्मॉलर यूनिट में। डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग 2123 बाय 2123 इंटू 2 है ना, इज इक्वल टू 32। ये आपने पढ़ा है। क्या है ये, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। पता है आपको, दिस इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड दीज आर मोलर। ये मैंने आपको 1/4 पार्ट यहाँ का बताया, 2 1 2 3। तो इस तरीके से आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके वी कैन हैव द टोटल नंबर ऑफ द टीथ इन द अपर एंड द लोअर जॉ। ओके, दैट कम्स आउट टू बी 32। ओके, डिस्क्राइब द रोल ऑफ काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन पैंक्रेटिक जूस में होता है। काइमोट्रिप्सिन आपने 3 एंजाइम वहाँ पढ़े थे, 4 पढ़े थे। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इलास्टेज एंजाइम इज देयर these enzymes, अदर एंजाइम भी आप बता दिए मैंने आपको, इलास्टेज है और मैंने आपको क्या बताया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एक एंजाइम ट्रिप्सिन। तो वो भी क्या करते हैं, प्रोटीन्स को पेप्टोन और पेप्टाइड्स में फर्दर प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। जो आपके पास पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, उनको छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करने का काम ये पैंक्रेटिक एंजाइम्स करते हैं। ओके,
तो हाउ आर पॉलीसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स आर डाइजेस्टेड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन लिखनी है जो मेनली आपके माउथ में ही कंप्लीट होती है, बट गैस्ट्रिक लाइपेज इस पे वर्क नहीं करता। सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन्स में। फिर पैंक्रेटिक लाइपेज आता है, पैंक्रेटिक अमाइलेज आता है जो ब्रेक डाउन करेगा इसी तरीके से। फिर इंटेस्टाइनल अमाइलेज आएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं जो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होती क्योंकि HCl प्रेजेंट है हाईली एसिडिक कंडीशंस की वजह से। और फाइनली जो सुक्रोज है, सुक्रेज एंजाइम एक्ट करता है, माल्टेज माल्टोज पे अटैक करता है, लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, एंड फाइनली ऑल द पॉलीसेकेराइड दे ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज यूनिट, मोनोसेकेराइड यूनिट ग्लूकोज। ओके, What would happen if HCl is not secreted? अगर HCl secrete नहीं होगा तो हमने पहले ही पढ़ा है जितने भी इनएक्टिव एंजाइम है, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, तो ये सब एक्टिव कैसे होंगे? तो दे मस्ट बी गेट एक्टिवेटेड टू डाइजेस्ट द प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स, जैसे इसको हमें डाइजेस्ट करना है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाने के लिए, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और HCl के और भी हमने बहुत सारे रोल पढ़े थे। इट के एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है, इट किल्स द बैक्टीरिया वट एवर द प्रेजेंट एसिडिक कंडीशंस तो हैं, और एंजाइम्स को एक्टिवेट भी कर रहा है। प्लस जो सलाइवरी अमाइलेज की फंक्शन को ये यहाँ आकर रोक देता है। फिर आता है डिफाइन थीकोडोंट एंड डाइफायोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है व्हेन द टीथ्स आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स इन द जॉज, दैट इज कॉल्ड थीकोडोंट। डाइफायोडोंट मीन्स टू सेट ऑफ टीथ आर देयर, वन इज मिल्क टीथ एंड वन इज परमानेंट टीथ। कल मैंने आपको 12 टीथ ऐसे बताए थे विच आर मोनोफायोडोंट, यानी कि जो सिर्फ परमानेंट ही आते हैं। ओके, फिर है नेम डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको बताया था इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। टोटल नंबर बताना हो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने ऊपर और नीचे दोनों का बताना है तो क्या हो गया 8, है ना, और ये कितना हो गया 4, 8 एंड 12। इज इट क्लियर? और टोटल आप इसका करोगे तो आपके पास 32 टीथ आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यही इसने पूछा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ बताओ। आपके पास 4 तरह के टीथ हैं जिसको हमने हेट्रोडोंट कहा था, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ओके, देयर नंबर इन द एडल्ट, आप बता दोगे ये नंबर। अगर ऊपर और नीचे का अलग अलग बताना है तब भी आप बता सकते हो, टोटल बताना है आप तब भी बता सकते हो। फिर है बाइल जूस कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम येट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। क्योंकि जो बाइल जूस है उसके अंदर क्या है, दैट इट डजंट हैव एनी एंजाइम बट लाइपेज एंजाइम विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट that is activated only on the emulsified fat, and the fat is emulsified by the bile juice. Okay, so this is very important कि bile cause the emulsification of fat. Clear? Next है how butter is digested and absorbed. Very important. बटर किस तरीके से, क्योंकि बटर क्या है, फैट है, तो बटर को डाइजेस्ट करने के लिए हमने क्या कहा था, बाइल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो उसको ब्रेक डाउन करेगा और मेनली इमल्सीफाई करेगा। बाइल डाइजेस्ट नहीं करेगा, बाइल उसे क्या करेगा, इमल्सीफाई करेगा। फिर उसके ऊपर लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा एंड इट ब्रेक डाउन इनटू ट्राइग्लिसराइड, ब्रेक डाउन इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड देन डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, देन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वी विल गेट। फैट का एब्जॉर्प्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन के लिए अगेन बाइल साल्ट कॉज द इमल्सिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ माइसेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले माइसेल बनती हैं जो स्मॉल स्फेरिकल वाटर soluble droplet, and then these are absorbed into the intestine and they resynthesize to form chylomicrons, that is a small fat molecules, and then these are absorbed by the lacteals. Very very important question, that how the fats are absorbed. Okay, with diagram you should explain absorption of fat. Next, digestion of protein. That itself it's very important question. In detail we have already discussed that how the digestion occur of the proteins, because in the mouth no digestion, then stomach propepsinogen and prorenin get activated, then in the intestine pancreatic juices and intestinal
intestinal juices, chymotrypsinogen, trypsinogen, procarboxypeptidases, elastases, aminopeptidases and dipeptidases. These all enzymes, they convert the protein into simpler form, that is the amino acids. Is it clear? तो ये डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इसके अलावा फंक्शन ऑफ लिवर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए. जैसे इन सारे में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि HCl का क्या फंक्शन है, तो आपको आना चाहिए. सेकंड, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, बाइल का क्या फंक्शन है, वो आपको आना चाहिए. फिर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. फिर फैट की एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे माइसेल बनते हैं, कैसे काइलोमाइक्रोन बनते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू शुड डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन. एंड वन मोर थिंग, that is the hormonal control of the digestion, that different parts of the digestive system, the stomach, intestine की कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, वो आपको करना है डिटेल में विद डायग्राम, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ओके. और टेबल जो है आपने ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के लिए मिनरल डेफिशिएंसीज, प्रोटीन डेफिशिएंसीज पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके. और एक और लास्ट में आपके कराया था मैंने, डिजीजेज, दैट आर द डेफिशिएंसी डिजीजेज और the diseases of the digestive system like diarrhea, constipation, vomiting, ये भी आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है. ओके. So this is all about the digestion and the absorption. Thank you.